Hello students, welcome in social science class. We are going through the chapter Nazism and the rise of Hitler, and this part of the text is from the same chapter, and this is birth of the Weimar Republic. Weimar Republic कैसे वजूद में आता है? Germany, a powerful empire in the early years of 20th century, fought the First World War 1914-1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies England, France and Russia. तो 19th सेंचुरी के जो पहले शुरू के साल थे उसमें जर्मनी जो था, जर्मनी वाज ए पावरफुल एम्पायर, और फिर इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो लड़ी है. फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1918 तक हुई, किसके साथ लड़ी? ऑस्ट्रियन एम्पायर भी लड़ रही थी, उनके साथ भी लड़ी, और उनके साथ मिल के लड़ी. किसके खिलाफ लड़ी? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ. ऑल जॉइंट द वॉर enthusiastically hoping to gain from a quick victory. सब जो है जंग बढ़ चढ़ के जंग में हिस्सा ले रहे थे ताकि उनको उम्मीद थी कि वो इसमें जीत हासिल होगी उनको. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. However, the Allies, strengthened by the US entry in 1917, won, defeating Germany and the Central Powers in November 1918. तो पहले जो है जर्मनी का जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है, वो इन दुश्मनों को हराने लगते हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं. तो बहुत सारे इलाकों पे जैसे फ्रांस पे कब्ज़ा कर लिया जाता है और बेल्जियम पे कब्ज़ा कर लिया जाता है, लेकिन अलाइज जो है वो मजबूत हो जाते हैं. जैसे यूएस उनके साथ आ जाता है 1917 में. इसके बाद वो जीतते हैं और जर्मनी की हार होती है सेंट्रल पावर्स में, और ये ऐसा होता है नवंबर 1918 में. The defeat of Imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast Germany polity. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with federal structure. Deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adults and including women. तो एम्पीरियल जर्मनी का ख़ात्मा हो जाता है, बादशाही वाली जो जर्मनी थी उसका ख़ात्मा हो जाता है, और एम्पीरियर जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है. और ये यहाँ से एक मौका मिलता है जर्मनी को कि वो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ बन जाती हैं और जर्मनी की पॉलिटी को रिकास्ट किया जाता है. नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया जाता है वीमर में, और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, रियासतें और मरकज़, फेडरल स्ट्रक्चर, और डिप्टीज़ बनाए जाते हैं जर्मन पार्लियामेंट के लिए, इलेक्ट किए जाते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं स्टैग. और ये था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल द एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन. और यहाँ पे जो इलेक्शन था वो कौन सा इलेक्शन बताया गया था? यूनिवर्सल अडल्टहुड पे जो होता है, मतलब जितने बालक लोग हैं सब वोट देंगे और उनमें वुमेन्स जो हैं वो भी शामिल होगी. This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. The peace treaty at तो ये जो
सिस्टम था यहाँ के ख़ुद लोगों ने जर्मनी के एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इसके टर्म्स जो थे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम डिफीट जो हुई जर्मनी की, उसके बाद इन्फोर्स कर दिए गए। The treaty at Versailles with the Allies was a harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. The Allied powers demilitarized Germany to weaken its power. The war guilt caused clause held Germany responsible for the war and damages the Allied countries suffered. Germany was forced to pay compensation amounting to 6 billion. The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s. Many Germans helped in the new Weimar Republic. Responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. तो फिर क्या होता है कि ट्रीटी में एक ट्रीटी होती है, पीस ट्रीटी होती है वर्साइल्स में। जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ है उस ट्रीटी में, इससे बहुत सारी कॉलोनियाँ खोनी पड़ती हैं, बहुत सारे इलाके खोने पड़ते हैं। 75% का लोहा जो है वो खोना पड़ता है, 26% कोल इसको अपना खोना पड़ता है, जो फ्रांस और पोलैंड और डेनमार्क, लिथुनिया वगैरह ले जाते हैं। अलाइड पावर्स जो हैं वो जर्मनी को वीकन करने के लिए डिमिलिटराइज कर देते हैं, और सारा जो जंग का बोझ, वो सारा मलबा था वो जर्मनी पे डाल दिया जाता है कि जर्मनी की वजह से जंग हुई है। तो अब जर्मनी को 6 बिलियन का जो है वो कर्ज, ये जुर्माना भी अदा करना पड़ता है जंग के लिए, क्योंकि अब जंग स्टार्ट की थी। तो अलाइड आर्मीज़ जो हैं वो बहुत सारे एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर लेती हैं 1920 तक। उसके बाद Germans held the new Weimar Republic responsible. फिर मैनी जर्मन्स जो थे, जो वो भी वेमर रिपब्लिक, जो नई स्टेट बनी वेमर रिपब्लिक, उसको रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं सारी डिफीट, हार के लिए, और जो डिस्ग्रेस, जो ज़िल्लत होती है वर्साइल्स में, उसके लिए। तो ये हमारा आज का सबक था। अगले सबक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।